Hello students, welcome to lecture number 14 of standard 11th, unit number 11th, the P block elements. At presently we are on a topic 11.8 and the title of this 11.8 is some important compounds of carbon and silicon. So in this title we firstly studied about the oxides of carbon, and as we know that in last lecture we completed 11.8.1 is carbon monoxide, and today we start with our continuous process is 11.8.2, and this topic is the carbon dioxide. So in this point of carbon dioxide, so how we the P block elements carbon dioxide. So first we start with the preparations of carbon dioxide. So we know that the preparations of carbon dioxide, firstly, two different scale is a small scale, means it's a laboratory scale, and another is the commercial scale or industrial scale. So it is prepared by burning. We know that the carbon, right, with oxygen, so it's a full combustion, it's not incomplete combustion, gives carbon dioxide. So it is prepared by burning carbon. It is prepared by burning carbon. Okay. So this burning carbon, or we say that it's a fossil fuels, right? Fossil fuels and other organic compound and other organic compounds. Right. So in presence of or in excess of air or oxygen, it gives a carbon dioxide. For example, if I give an example of methane, methane is an organic compound, right? So when it is heated or which is combustion with the help of excess of air, so it's converted into carbon dioxide and water is released. So for balancing one carbon, so 2 2s are 4, so 2 plus 2 oxygen. Okay, so this is the normal process or prepared by a complete combustion of carbon and carbon containing fuels or fossil fuels or other organic compound. Okay, this is the first point. Okay, fine. Next point, in the laboratory it is prepared by a action of acids on carbonates. For example, if I having a calcium carbonate, so when it is reacted with hydrochloric acid, so it's converted into calcium chloride plus carbon dioxide and plus water is released. So it's a simple method, I think. So you in a lower standard you studied about this method when calcium carbonate is reacted with hydrochloric acid, so it's converted into calcium chloride, carbon dioxide and water. So this method is a laboratory method. But commercially carbon dioxide is produced as a byproduct during the manufacture of ammonia, right? So carbon monoxide when reacts with H2O, so we get a carbon dioxide and hydrogen as a gas. Clear? Once again, commercially this carbon dioxide is produced as a byproduct during manufacture of ammonia, so it's called as an Haber process. Haber's process. जो हेबर प्रोसेस में अमोनिया में उसमें बाई प्रोडक्ट आता है, तो हाइड्रोजन नीडेड फॉर द पर्पस इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग स्ट्रीम ओवर हीटेड टू कार्बन मोनोक्साइड और मीथेन. जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि मीथेन है, राइट, तो उसके ऊपर से भी जैसे मैं स्टीम पास कराऊंगा तो भी वो कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा. क्लियर हो गया है? आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से मैं आपका इसको इंडस्ट्रियली मुझे बनाना हो, कॉमर्शियल स्केल में मुझे बनाना हो, तो मैंने अभी आपको बोला था कि लाइमस्टोन से तो हो सकता है, ये लेबोरेटरी से भी हो सकता है और कॉमर्शियल स्केल में भी हो सकता है. और उसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे कॉमर्शियली कार्बन डाइऑक्साइड एक और प्रोसेस से भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसको हमें अभी टेक्स्ट बुक में उसने मेंशन नहीं किया हुआ है. लेकिन जैसे हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे पार्ट 2 में हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, तभी फिर से मैं इसका कनेक्शन आपको दिखाऊंगा. चलो, ये तो आपको समझ में आ गया. फाइन. अभी थोड़ा हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं. स्ट्रक्चर, राइट. तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हमें मालूम है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें जो कार्बन हमारे होते हैं विच इज sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन होते हैं
वो sp हाइब्रिडाइज हो से, सो इट फॉर्म्स 2 सिग्मा विथ 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड 2 p pi मल्टीपल बॉन्ड, जिसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए सी डबल बॉन्डो एंड देयर इज अ लॉन पेयर एंड लॉन पेयर। मैंने अभी क्या बोला कि जो 2 सिग्मा बॉन्ड है, राइट, अभी 2 सिग्मा बॉन्ड तो वो 2 ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं, राइट, और जो 2 p pi बॉन्ड है, 2 p pi बॉन्ड्स है, वो मल्टीपल बॉन्ड है। तो इससे क्या होगा, sp होने की वजह से वो लीनियर में चला जाएगा, राइट, मोनोमेरिक कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। वो क्या बनाएगा, मोनोमेरिक कोवेलेंट कंपाउंड यहां पे वो दिखा सकता है। क्लियर। तो मैंने अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया है, और मैंने अभी उस दिन भी आपको, जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में भी बात की थी, तभी उस दिन भी मैंने समझाया था कि दोनों बॉन्ड लेंथ है ना एक ही होती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो मुझे 122 पाइकोमीटर मिल रही है, right? And experimentally it has been found the carbon oxygen bond length in CO2 is only, मिलनी चाहिए इतनी, लेकिन मुझे यहाँ पे मिल रही है 115 पाइकोमीटर मिल रही है। So this can be explained with the help of carbon dioxide considers to be a resonance hybrid of the, जैसे मैंने आप उस दिन रेजोनेंस के बारे में बात की थी। देखिए ये पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ये मैंने बताया था, पहले मैं वो स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये लॉन पेयर है और यहाँ पे भी लॉन पेयर है। मुझे मालूम है कि जैसे ये यहाँ पे आ सकता है तो उस टाइम वो पाई बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, तो इससे क्या स्ट्रक्चर्स मुझे जनरेट होगा, तो इससे ये मुझे मिलेगा ना, ये C है, यहाँ पे O है, आप समझ गए, ये माइनस चार्ज में चला गया है, ये प्लस चार्ज में चला गया है। तो एक और प्रोबेबिलिटी इससे भी होगी ना, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मेरे पास ये जो माइनस वाला था, माइनस वाला वो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो जो डबल बॉन्ड प्लस वाला था तो इससे ये मिलेगा। तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो ड्यू टू द रेजोनेंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ में कई बार ट्रिपल बॉन्ड का, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का भी कैरेक्टर मुझे मिल रहा है। सो इसलिए बॉन्ड लेंथ वो 152 से घट के 115 पाइकोमीटर मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो ये थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात की थी। मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ प्रॉपर्टीज के बारे में, समझ में आ रहा है। अभी हम प्रॉपर्टीज क्या है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस है, लेकिन 1.5 टाइम्स हेवियर देन एयर, वो एयर से 1.5 टाइम्स ज्यादा भारी है, राइट। दूसरा मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, CO2 इज नॉट पॉइजनस, कि हमने देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड काफी पॉइजनस था, लेकिन however it does not support life in animals and human being because however it can cause suffocation even eventually death due to the lack of oxygen। लेकिन ये पॉइजनस नहीं है, वो हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ेगा। फिर भी मैं आपको ये पॉइंट भी इसमें बारे में समझाना चाहता हूं कि which is does not support life in animals and human beings and it can causes a suffocations and eventually death due to the lack of oxygen। तो एक ये फिर उसका जो एक मैं यहाँ पे नेचर में आपको दिखाना चाहता हूं वो है नॉन कंबस्टिबल नेचर है उसका। क्या है, यानी वो नॉन कंबस्टिबल है। ऑर्डिनरीली कार्बन डाइऑक्साइड इज नाइदर कंबस्टिबल और नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबंशन, राइट। लेकिन जैसे मेरे पास जो हम बोलेंगे तो उसका ये नेचर हो, लेकिन कोई एक्टिव मेटल होगी तो वो थोड़ा रिएक्शन कर पाएंगे। फिर थोड़ी मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सॉल्युबिलिटी तो इट इज हाई स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी में हम क्या बोलेंगे, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इट्स सॉल्युबल इन वाटर हाउएवर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, राइट, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, राइट।
सोडा वाटर में आपने देखा होगा, अदर एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में वही होता है, राइट। तो जिसका एग्जांपल क्या है, सोडा वाटर में क्या होगा, एरिएटेड वाटर में क्या होगा, मैं काफी प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें फील कर दूंगा। फिर उसका कोई नेचर होगा, जैसे मैं आपके बारे में यहाँ पे इसका एसिडिक नेचर के बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। When CO2 dissolve in water, only some molecules reacts with water to form, तो वो क्या बनाएंगे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, while most of the dissolved CO2 remains loosely hydrated होते हैं। तो ये जो कार्बोनिक एसिड यहाँ पे जो बन रहा है वो आपको पता होगा कि वीक डाई बेसिक एसिड है, क्योंकि उसके पास 2 H प्लस है 2 OH को न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। उसका 2 सीरीज होगी, एक बाइकार्बोनेट सीरीज या हाइड्रोजन कार्बोनेट सीरीज, जैसे हम बोलेंगे HCO3-1 सीरीज भी वो दिखा सकते हैं और कार्बोनेट सीरीज भी दिखा सकते हैं। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे मैंने उसको पानी में मिलाया तो उसने H2CO3 कार्बोनिक एसिड दिखाया। ये जो कार्बोनिक एसिड में अभी आपको H2CO3 के बारे में बात करना चाहता हूं, ये जो एक्वियस है तो उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन होगा यानी डिसोसिएशन होगा, तो विच इज H प्लस एंड HCO3 माइनस में चला जाएगा, और जैसे जैसे HCO3 माइनस है विच इज फर्दर डिसोसिएट्स into CO3 minus 2. So thus the solution of carbon dioxide in water is actually an equilibrium mixture. यहाँ पे सभी का equilibrium मुझे मिलेगा, CO2 का, H2CO3 का, HCO3 minus का और CO3 minus का. So this equilibrium is a very important, right? In H2CO3 जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि H2CO3 और HCO3 minus, क्योंकि ये जो है ना वो बफर सिस्टम बनाएगा। आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, ये एक बफर सिस्टम बना रहा है। सो विच हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं, मेरे पास जो ह्यूमन ब्लड होते हैं, तो ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है वो विच इज नियर अबाउट 7.262 नियर अबाउट 7.42 होता है, राइट। So the rate at which carbon dioxide comes in equilibrium with H2CO3 is slow. So this is also important in the physiology of the carbon dioxide. तो एक थोड़ी बात हमने उसके एसिडिक नेचर के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अभी और प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे कि जैसे फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। इसकी क्या देखेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, मींस इट्स अ ग्रीन कलरिंग पिगमेंट ऑफ द लीव्स एंड द सनलाइट। दे एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म अ ग्लूकोज एंड स्टार्च। वो बायोलॉजी वाले बच्चे और जो हमारा बेसिक था, तो when 6 mole of CO2 when reacts with 6 mole of H2O in presence of chlorophyll, right, in presence of sunlight, तो क्या होगा, तो विच इज दे प्रिपेयर C6H12O6 प्लस 6 मोल ऑफ O2। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। बाय दिस प्रोसेस प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर themselves as well as for the animals and human beings, but the increasing combustion of fossil fuels and decompositions of जैसे हम उसको बोलेंगे कि जैसे 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 जो फॉसिल फ्यूल का क्या बढ़ता जाएगा, कंबंशन बढ़ता जाएगा, राइट, और डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द पास्ट 2 डिकेड्स। तो उससे क्या हो गया, अभी क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी जो इफेक्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो इसकी वजह से क्या होगा, रेज इन टेम्परेचर, यानी हमारा जो जलवायु परिवर्तन हम बोलते हैं, राइट, तो उससे उसका टेम्परेचर रेज हो गया है एंड दे माइट हैव अ सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे, कि जैसे बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है या कई जगह पे तो पानी ही नहीं बरसता है। तो ये जो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो इफेक्ट समझ रहे हैं, क्योंकि जो प्लांट है वो CO2 डाउन कर रहा है, लेकिन सामने हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स का कंबसन करके ज्यादा CO2 बना रहे हैं, और फिर जो सीमेंट फैक्ट्रीज के बारे में भी हमने देखा कि ड्यूरिंग दिस, तो उसमें डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ऑल्सो गिव्स अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे ये थोड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रॉब्लम्स है हम यहाँ पे देख रहे हैं।
फिर यहाँ पे मैं एक और बात यहाँ पे आपको ड्राई आइज के बारे में भी दिखाना चाहता हूँ। एक नया पॉइंट है, आपने देखा होगा ड्राई आइज। तो जो ड्राई आइज इज द नेम गिवन टू द, उसको किसको हम नाम देंगे? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम उसका नाम दे पा रहे हैं, राइट। सो ड्राई आई इज द नेम गिवन टू द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज ऑल्सो, उसको हम कई बार कार्डाइज भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डाइज भी हम बोलेंगे। इट इज ऑब्टेन व्हेन CO2 जो होता है, CO2 विच इज कूल्ड अंडर कितने पे? 50 to 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 60 to 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हम उसको ले जा रहे हैं, राइट। सो तो अभी क्या होगा? when a solid carbon dioxide, okay, so once again dry ice is the name given to the solid carbon dioxide. Sometimes it's called as a card ice when it is obtained when carbon dioxide is cooled under 50 to 60 atmospheric pressure. चलो फिर when a solid carbon, जैसे मैं ये मेरे पास solid carbon dioxide होते हैं, तो this is allowed to evaporate in air. Allowed to evaporate in air. ऐसे हम एयर में उसको evaporate करेंगे, right? So under 1 atmospheric pressure, under 1 atmospheric pressure पे हम उसका क्या करेंगे? evaporate करेंगे. So it changes directly कहां पे चला जाएगा? into the gaseous state without liquefying, okay, without liquefying. तो इससे क्या होगा? अनलाइक ऑर्डिनरी आइस, इट डज नॉट वेट द सरफेस ऑन विच इट मेल्ट्स, देयरफॉर इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राई आइस बोलेंगे। क्योंकि वो ड्राई आइस इस तरह से होता है क्योंकि वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस में चला जा रहा है, लिक्विड में नहीं चला है। बीच की जो पोजिशन स्टेट्स होती है वो यहाँ पे नहीं आती है। जैसे हम ऑर्डिनरी जो आइस होते हैं वो वेट होते हैं, यहाँ पे ये वेट नहीं होने की वजह से उसको हम बोलेंगे क्या? ड्राई आइस बोलेंगे। तो उसका जो यूजेस होगा, ड्राई आइस इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोल्ड बाथ्स। जैसे मुझे लेबोरेटरी में कोल्ड बाथ बनाने हैं, इन द लेबोरेटरी बाय मिक्सिंग इट विथ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, राइट। तो मुझे इसके लिए जरूरत पड़ेगी। फिर इट इज ऑल्सो यूज एज अ कूलेंट, ये जो कूलेंट के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है फॉर प्रिजर्विंग such a type of articles in food industries, और ये लोकल बंस के लिए भी, लोकल बंस जो होते हैं वहां पे भी इस्तेमाल होता है। और सर्जिकल ऑपरेशंस होता है, सर्जिकल ऑपरेशंस में भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्जिकल ऑपरेशन में भी हम उसका यूज कर पा रहे हैं। तो ये जो थोड़ा मैंने अभी आपको बताया था वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का जो 11.8.2 का हमारा जो पोर्शंस था वो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो नेक्स्ट हमारा वाला पॉइंट है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो कार्बन का हमारा जो पॉइंट्स था कंपाउंड्स का वो अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम सिलिकॉन के जो डाइऑक्साइड है या इसके ऑक्साइड्स है वहां पे हम जाएंगे। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जैसे हम इसको SiO2 भी बोलते हैं, इस कॉमनली कोल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है सिलिका, कॉमनली कोल्ड एज ए सिलिका। आपको मालूम होगा कि 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट is made up of silica and silicates. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अच्छा वो जो सिलिका occurs in several
क्रिस्टेलोग्राफिक फॉर्म्स, क्रिस्टेलोग्राफिक फॉर्म्स यानी कहीं कहीं फॉर्म्स में वो मुझे यहाँ पे मिल रही है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, क्वार्ट्स आपने पढ़ा होगा, क्वार्ट्स है। फिर आपने क्रिस्टोबेलाइट का भी नाम सुना होगा, क्रिस्टोबेलाइट। फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूं ट्राइडाइमाइट, ट्राइडाइमाइट भी आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में मुझे मिल रहे हैं। दिस क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल एट सूटेबल टेम्परेचर, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल भी हो रहे हैं, राइट। सो दे आर इंटर कन्वर्टेबल एट suitable temperature। समझ में आ रहा है, राइट। Some of the crystalline forms of silica and they are interconvertible at suitable temperature। चलो अभी हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। तो जो SiO2 के बारे में बात करेंगे तो हमें मालूम है कि वो कोवैलेंट नेचर वाला है, 3 डायमेंशनल उसका नेचर, 3 डायमेंशनल उसका नेटवर्क, सॉलिड उसका यहां पे मुझे मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि इन ईच सिलिकॉन इज बाउंडेड टू 4 ऑक्सीजन, यानी हर एक सिलिकॉन है वो 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं, 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। सो दे आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रली, तो वो टेट्राहेड्रली, right, तो in each oxygen atom is attached to the 2 silicon atoms by covalent bond। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास सिलिकॉन है, यहाँ 1 2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन है, फिर से वो यहाँ पे सिलिकॉन के साथ जुड़ गया है, फिर ऑक्सीजन है, यहाँ पे फिर से सिलिकॉन है, फिर ऑक्सीजन है, यहाँ पे फिर से सिलिकॉन है। तो इस तरह से हम देख सकेंगे सिलिकॉन, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। उसी तरह से मैं यहाँ पे सिलिकॉन दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन का ये जो मैंने आपको दिखा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये सिलिकॉन फिर से नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से SiO2 आप देख रहे हैं, SiO2 का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर SiO2 का आपको दिखाई देगा। ईच कॉर्नर आप जो भी देखेंगे is further set by another tetrahedron, so the entire crystal may thus be considered as a giant molecule। ये पूरा giant molecule in which 8 member rings are formed with a alternating silicon and oxygen atoms। ये जो आप देख रहे हैं Si और O का जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, which is very strong, very strong। जस्ट मैं आपके इंटरेस्ट के लिए 368 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ओके। सिलिका इज, तो इसकी वजह से क्या होगा कि सिलिका है ना वो रिलेटिवली इनर्ट होती है एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी यहां पे हमें दिखाई दे रहा है। इट डज नॉट रिएक्ट विथ हेलोजन, इट डज नॉट react with halogens except फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ वो रिएक्ट करेगा, राइट। फिर वो डाइहाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, राइट, एंड एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा है एक्सेप्ट HF के साथ वो रिएक्ट करेगा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरा जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इट इज अटैच्ड बाय फ्लोरीन, राइट। So it's converted into silicon tetrafluoride and oxygen is released. Same way, same silica is react with a hydrofluoric acid, right? So it's converted into same way, SiF4 and 2 mole of H2O. Right? Once again, और वो नाइट मीन्स बेस के साथ, क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एसिडिक नेचर होने की वजह से वो बेस के साथ भी रिएक्ट हो पा रही है, उसको हम जैसे हमें फ्यूज करना पड़ेगा तो वो सोडियम सिलिकेट में चला जाएगा। तो इससे हम फ्लक्स, मेटलर्जी में फ्लक्स टॉपिक आएगा, फ्लक्स की तरह हम उसका यूज कर पा रहे हैं। सो वंस अगेन, it does not react with halogens except fluorine, dihydrogen and most of the acids except hydrofluoric acid and metals even at
हाई टेम्परेचर। इसमें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो क्वार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो ये जो क्वार्ट्स यहां पे है, राइट, इज एक्सटेंसिवली used as a piezoelectric material। वो यहां पे उसका इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है। थ्रू इट इज बीन पॉसिबल टू डेवलप एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक। तो हम क्या क्लॉक में हम उसका यूज कर रहे हैं, मॉडर्न रेडियो, वहां पे भी क्वार्ट्स का, टीवी में भी क्वार्ट्स का हम इस्तेमाल करें फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन, सभी जगह पे में हम उसका यूज है वो यहाँ पे कर पा रहे हैं। जैसे ब्रॉडकास्टिंग के लिए यहाँ पे उसका यूज हो रहा है। तो ये क्वार्ट्स का एक यूज मैंने यहाँ पे आपको बताया है। एक आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है सिलिका जेल। सिलिका जेल, तो ये सिलिका जेल के बारे में हम थोड़ी बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो एमोर्फस फॉर्म्स ऑफ सिलिका होता है, एमोर्फस फॉर्म्स ऑफ सिलिका है। ये सिलिका जेल क्या है, एमोर्फस फॉर्म्स ऑफ SiO2। समझ में आ रहा है? फिर से मैं आपको दिखाना है सिलिका जेल। तो उसका जो यूजेस, हमारी बुक में सिर्फ यूजेस ही दिया हुआ है, तो इसका जो यूजेस है तो हम उसको कहां पे यूज करेंगे। सिलिका जेल एमरफस है, पोरस है, और वो एब्जॉर्बिंग वाटर, राइट। उसको हम ड्राइंग एजेंट की तरह यूज करेंगे। कहां पे यूज करेंगे, ड्राइंग एजेंट की तरह हम यूज करेंगे। एंड और दूसरा हैज ए सपोर्ट फॉर क्रोमेटोग्राफिक, जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल्स होते हैं, राइट। और फिर कैटालिस्ट, कहीं जगह पे हम उसका यूज कर रहे हैं। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सिलिका होती है ना, उसके दो एमोर्फस फॉर्म होते हैं, एक सिलिका जेल है और दूसरा किसल गुड़ है। तो जिसमें मैं सिलिका जेल की बारे में मैंने अभी बात की थी, तो वो सिलिका जेल आपने देखा होगा कि आपने कोई नया प्लास्टिक का, जैसे आपने वाटर बैग परचेस की, या आपने, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई आपने कोई अच्छी वाली, आपके जो पिताजी आपके घर पे जो कोई ड्रग्स ले रहे हैं, तो आपने देखा होगा कई कैप्सूल वाली ड्रग्स में एक नानी, एक छोटी वाली, राइट, बिल्कुल एक आपको यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि वो क्या होगा, वो यहाँ से तो वो सिलिका जेल की वो एक छोटी वाली बैग है, वहां पे डाल दी होगी। तो वो सिलिका जेल है, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, या तो ताकि कोई उसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो ना आ सके। तो ये सिलिका जेल का रोल है, राइट। तो विच कैटालिस्ट के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मैंने अभी बोला था एड्सॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी उसका यूज होता है। सिलिका जेल ह्यूमिडिटी डिटेक्टर होने की वजह से उसको हम स्मॉल पैकिंग ऑफ ड्राई सिलिका जेल, हम उसको पैकिंग बॉक्सेस में भी रखते हैं, राइट। तो ये जो सभी जो उसके यूज है वो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया है। एक दूसरा मैंने अभी आपको दिखाना चाहता हूं, वो है किसल गुड़। ये भी एमोर्फस सिलिका ही फॉर्म है। ये भी क्या है, एमोर्फस फॉर्म्स ऑफ सिलिका ही है, यानी सिलिका के दो एमोर्फस फॉर्म मुझे यहां पे मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर। और उसको फिल्ट्रेशन प्लांट में ज्यादा यूज हो रहा है। इट इज अ पोरस व्हाइट पाउडर एंड यूज फॉर द फिल्ट्रेशन प्लांट, सॉरी, फिल्टरेशन प्लांट्स में हम उसका ज्यादा यूज करेंगे, राइट। फिर उसको इनर्ट सपोर्ट फॉर फीलर में भी हम उसका यूज करेंगे। जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा, मुझे मालूम नहीं है, डायनेमाइट भी आपने नाम सुना होगा। इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट एंड ग्लिसरीन डाइनाइट्रेट विच इज एब्जॉर्ब्ड ऑन किसल गुड़, राइट। फिर अपने गिलेगिनाइट इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सप्लोजिव नाइट्रोबेंजीन इन किसल गुड़। तो कहीं जगह पे हम इसका किसल गुड़ का जो यूज है वो हम यहाँ पे समझा सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो ये पूरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड में मैंने दो बात आपके साथ की थी।
कि जैसे उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म किस तरह से होता है और उसका एमोर्फस फॉर्म किस तरह से होता है। समझ में आ गया? तो ये दोनों आपको देखने पड़ेंगे। तो आज तक हम यहीं पे रुकेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वहां पे हम सिलिकॉन्स के बारे में हम बात करेंगे। अभी धीरे 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 हम जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वो मेरा जो एक्सप्लेनेशंस लेक्चर में वो लास्ट लेक्चर है, क्योंकि अभी तो हम सिलिकॉन्स और जियोलाइट्स दोनों के बारे में, सिलिकेट्स और जियोलाइट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके साथ बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।